بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد منیر الحسن عرف بخاری صاحب گوپال گنج بہار آپ لوگوں کے سامنے تاریخ کربلا پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ سماعت سمار کر ثواب دارین حاصل کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ شیر خدا کے بارے میں کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بن اسد ہے اور والد کا نام عمران ہے اور کنیت ابو طالب، اور آپ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ امیر المومنین بھی ہیں اور امام المتقین بھی، شیر خدا بھی ہیں اور مشکل کشا بھی، مرتجا بھی ہیں اور دماد مصطفیٰ بھی، اور آپ نفس رسول بھی ہیں اور زوج بطول بھی۔ کون علی جس نے کبھی خیبر کے قلعوں کو اکھاڑا اور کبھی مرہب و ابن ادو کو پچھاڑا، اور جس کی تلوار کبھی احد کے میدان میں چمکی اور کبھی بدر کے ریگستان میں، اور جس کی شمشیر براں کبھی غزوہ تبوک میں لہرائی اور کبھی غزوہ خندق میں کفر پر گری، اور جس نے اپنی بہادری و شجاعت کے صلے میں اللہ کے طرف سے لا فتح الا فتح لا سیف لا الا ذوالفقار کا تمغہ ضرورت حاصل کیا۔ کون علی وہ جو کعبہ میں پیدا ہوا اور شہید مسجد میں، اور جو ہمارے نبی کا ویر بھائی ہے، صحابہ کا مشیر ہے، مومنوں کا امیر ہے اور سنیوں کا پیر ہے، اور جو اس کو نہ مانے وہ شریر ہے۔ کون علی وہ جس نے ہجرت کی رات محبوب خدا علیہ السلام کے بستر پر بسر کی۔ اس رات بڑا شدید امتحان تھا، اور اس رات نبی کے بستر پر سونا گویا تلواروں کے سائے میں سونا تھا، اور موت و بلا قط سے دست بدست جنگ تھی۔ مکہ مکرمہ کے نامور اور مشہور قبیلوں کے بہادروں کا مقابلہ تھا۔ ہر لمحہ جان جانے کا خطرہ تھا، اس لیے کہ کافر پورے ساز و سامان کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کو قتل کرنے کے اٹل ارادے سے آئے تھے، مگر چونکہ حیدر بھی ایمان کے کوہ گرا تھے، اس کے رسول میں سرگردہ تھے، اس لیے بغیر کسی تعامل کے اپنے آقا و مولا کے بستر پر سونا منظور کر لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کوئی نبی کے حکم کے بعد سوچنا ایمان کی توہین ہے۔ نجہت المجالس جلد 2 صفحہ 210 میں حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ امام نصفی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبل از ولادت یہ کرامت تھی۔ عربی الفاظ ہے، اس کے معنی ہے کہ آپ کی والدہ بت پرست تھیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے بطن میں آئے تو آپ کے والدہ جب کبھی کسی بت کو سجدہ کرنے کا ارادہ کرتی تو حضرت علی روک دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ کی اونچی اونچی اور بلند پہاڑیوں کے دامن میں اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے ارد گرد عرب کے مشہور نامور قبیلوں کے لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ خانہ کعبہ اور گرد و نواح کے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اور جوان اس وقت کے عرب کے دستور اور اپنے آبا و اجداد کی پرانی رسموں کے مطابق طواف کعبہ کر رہے تھے۔ ان میں حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی شامل تھیں، جو اپنے بطن مبارک میں ایک نفس اقدس میں اور اپنے صدف رحم میں اسلام کا ایک گرا قدر موتی چھپائے ہوئے اس ہنگامہ حیات انسانی سے بے خبر کعبہ کی مقدس دیوار کے سائے میں اپنے دل کی گہرائیوں میں حزن و ملال کا ایک طوفان اور اپنی پیشانی پر خفت و ندامت کے آثار لیے سر جھکائے بیٹھی تھیں، کیونکہ آثار ولادت پیدا ہو چکے تھے اور قدرت کے قانون کے مطابق
वह रोजा शुरू हो चुका था वह सोच रही थी कि यहाँ कोई हिजाब नहीं और कोई पर्दा नहीं, फिर अब वह ऐसी हालत में किधर जाए। और अभी वह सोच ही रही थी कि अचानक काबा की दीवार फट गई और गैब से आवाज आई कि ए फातिमा बिन असद, काबा के अंदर जाओ। चुनंचा आप काबा के अंदर चली गईं और फिर अमीरुल मोमिनीन हैत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वलादत बासआदत खाना काबा में हुई। कसेरा मैसर न सुद ई सआदत बकाबा वलादत ब मस्जिद शहादत। कि क़यामत तक कोई माँ अब ऐसा फर्जन नहीं जनेगी जो पैदा काबा में हो और शहीद मस्जिद में। जनाब खलीक कुरैशी लाइल पूर के एक बाजौक अदीब, बाहोश खतीब और साहब दिल शायर भी हैं। उन्होंने हैत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वलादत व शहादत को अपने पाकीज़ा तख्लीक़ात में इस तरह अदा किया है कि ताईद हक से पहली शहादत अली की है, पैगंबरी नबी की वलायत अली की है, मौलिद भी मोहतरम है, वल्द भी है मोहतरम, काबा और जाए वलादत अली की है। मौलूद काबा के लिए मशहद भी खूब था, मस्जिद में अल्लाह अल्लाह शहादत अली की है। काबा से इब्तदा है तो मस्जिद पे इंतहा, मरकूम व हरम में हकायत अली की है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी गई तो कमली वाले आकाए दो आलम तशरीफ लाए। अभी तक शेर खुदा ने आंखें नहीं खोली थीं। नबी ने अली को गोद में उठाया और फिर खुद ही नहलाया और साथ ही फरमाया कि आज अली को पहला गुस्ल मैं दे रहा हूं और कल आखिरी गुस्ल मुझे अली देगा। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान मुबारक हैत अली के मुंह में दी तो हैत अली ने आंखें खोल दी। इधर आगोश की हसरत, उधर दीदार का अरमा, अली ने खोल दी आंखें, नबी ने गोद फैलाई। जो उन जवान होने के बाद एक दिन हुजूर इस्लाम ने हैत अली से पूछा कि तुमने मेरे आने से पहले आंखें क्यों न खोली थी। तो हैत अली ने अर्ज की, आका मेरी तमन्ना ये थी कि मेरी आंख खुले तो मेरी पहली निगाह रुखे मुस्तफ़ा पर पड़े। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 525, मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 279, तिरमिजी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 214, मिस्कात शरीफ सफ़ा 563। हैत सुहैल बिन अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जंग खैबर के मौका पर नबी के गुलामों ने अर्ज की कि खैबर का किला फतह नहीं होता तो हुजूर इस्लाम ने फरमाया, अरबी लफ्ज़ है, इसका माने है कि कल मैं ये इस्लाम का झंडा उसको दूंगा कि जिसके हाथों से अल्लाह ताला फतह देगा और वह ऐसा आदमी है युहिब्बुल्लाह व रसूलुह कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। या युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। सुबह हुई तो हर मुसलमान की तमन्ना ये थी कि इस्लाम का झंडा मुझे अता हो, लेकिन हुजूर इस्लाम ने फरमाया, अब ऐना अली इब्न अबी तालिब, क्या हैत अली कहाँ हैं? गुलामों ने अर्ज की, आका उनकी आंखें दुखती हैं। तो हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि उनको बुलाओ। और जब हैत अली हाजिर हुए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन अली के आंखों पर लगा दिया कि उसी वक्त हैत अली की आंखें ठीक हो गईं कि जैसे कभी कोई तकलीफ ही नहीं हुई थी। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस्लाम का झंडा अता कर दिया और जुल्फ़कार हैदरी अपने हाथों से कमर पर बांधी। बस फिर क्या था, ये अल्लाह का शेर लश्कर इस्लाम लेकर खैबर की तरफ रवाना हुआ। दिल में इश्क रसूल था, हाथों में इस्लाम का झंडा और निगाहों में जलवे यार। नारे तकबीर की खुदाई आवाज कज़ाए आसमानी में गूंज और फिर अल्लाह के शेर ने खैबर की पथरीली जमीन पर अलम इस्लाम का गाड़ दिया।
खैबर के किला कमूस का मुहाफिज मरहब यहूदी जो कुफ्र की दुनिया का एक मशहूर व मारूफ और जोर आवर पहलवान था, लोहे में गर्क सर पर व मन वजनी खुद पहने और हाथों में गुर्ज लिए हुए मुकाबला में आया। उधर हैत अली भी ये पढ़ते हुए आगे बढ़े। अरबी लफ्ज है कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, बस फिर क्या था, आप में दो तलवारें टकराईं, एक इस्लाम को मिटाने के लिए और दूसरी बचाने के लिए। एक शम्मा तौहीद और रसालत को बुझाने के लिए और दूसरी जलाने के लिए। ये हक व बातिल की दस्त बदस्त जंग थी और इस्लाम व कुफ्र का मार्का था। एक तरफ सरापा कुफ्र था और दूसरी तरफ अली, उसके पीछे इब्लिस लईन था और उसके पीछे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम। मरहबे ने बड़ी चालाकी से वार किया, अली ने बड़ी होशियारी से रोका। उसने पैतरा बदला, उसने कदम बढ़ाया। मरहब ने गुरुज उठाया, अली ने हाथ से पकड़ा, झटका दिया और गुरुज गिर पड़ा। और फिर अली की तलवार हवा में लहराई, फजा में चमकी और बिजली की तरफ मरहब पर गिरी और एक कदम पीछे हट गया। उसने फिर तलवार का एक भरपूर वार किया, अली ने ढाल पर रोका, ढाल टूट गई तो शेर खुदा ने कुव्वत परवरदिगार से दर खैबर को उखाड़ा, उसको ढाल बना लिया और फिर शमशीर हैदरी उठी और लपकी। मरहब ने ढाल पर ली, लेकिन ढाल को दो टुकड़े करती हुई खूद तक पहुंची, खूद को तोड़कर सर पर आई और सर को काटती हुई जिस्म तक पहुंची, जिस्म को चीरती हुई जमीन पर गिरी तो जमीन पुकार उठी कि या अल्लाह, मुझे अली की तलवार से बचा ले। और फिर अल्लाह के शेर ने जोश में आकर किला की दीवार को जोर से पकड़कर हिलाया तो जलजला आ गया और दरे खैबर को 40 गज के फासले पर गिराया। इस फतह व नुसरत पर एक बार फिर नारे तकबीर गूंजी और हैत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सैयदुल मुरसलीन अलैहिस्सलाम को का अता किया हुआ इस्लाम का झंडा खैबर के किला पर गाड़ दिया। दरवेश लाहौरी कहता है, कभी तन्हाई को व दमन इश्क, कभी सूज व सर व दो अंजुमन इश्क, कभी सरमाया महराब व मस्जिद, कभी मौला अली खैबर शकन इश्क। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया भाई और बहनों, अगर आप लोगों का मेरा ये तकरीर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, करके वीडियो को लाइक करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।